Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. So guys, let's start the new lecture of center of mass. So in the last lecture, we had seen some spring mass system questions and we had solved problems with the help of center of mass frame. So today we'll be finding out the center of mass for continuous mass distribution. So up to the last lecture, what we were doing, we were calculating the center of mass by m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 like that. So we had discrete mass system. We had different particles of different masses which were located at different locations. Now we are going to have a continuous mass distribution, like ring where we have a mass distributed over a circle, a disc where we have a mass over an area, circular area. ठीक है, if you have a square plate, if you have a triangular plate, if you have a hemisphere or sphere, है ना, so like that we can have different body shapes and we can have a mass distributed over a area or volume or a line. If we have a rod, we can consider that rod to be a line. So there we have a mass distributed on a line. एक line पे mass distributed है. Ring की जब बात करो तो ring में एक circular line पे mass distributed है ना, एक पतली सी thin line है जिसपे mass distributed है. So this kind of shapes we are going to find out the center of mass for that. So you can write one by one. So if we have a rod, first write uniformly distributed rod. ठीक है. So अब एक rod है आपके पास which has a uniform distribution of mass. Uniform मतलब हर जगह पे जो मास है, जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोटा, यहाँ पे पतला, यहाँ पे मोटा, यहाँ पे पतला. सो जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज कांस्टेंट, मास डेंसिटी इज कांस्टेंट. कहीं पे भी मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर. सो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सोच के बताओ. वेयर द सेंटर ऑफ मास विल लाई? इट विल लाई एट द सेंटर. ठीक है, कॉमन सेंस से हम लोग बोल सकते हैं इट विल लाई एट सेंटर. जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है, इफ इट इज सिमेट्रिक, तो हम लोग उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही मानते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. इधर जितना मास है उतना ही मास इधर है. सो इट विल लाई एट द सेंटर. इफ यू हैव अ रिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा. डज इट हैव एनी मास ओवर हियर? नो, सारा का सारा मास तो यहाँ पे है. m मास, अ रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, the center of mass will lie at its center, but we don't have any mass at the center. But what we are saying, center of mass. इस रिंग को what I can do if I want to solve some problems like finding out the momentum or finding out the work done by gravity. So what I can do, I can assume that this ring is not there. There is a particle of mass m which is located here. If this ring is moving like this, we can say this point is moving like this. So we can represent this ring with the help of a point which is here and which has a mass equals to mass of the ring. Similarly, if we have a disc, uniformly distributed disc, uniform mass distribution. So it's a area. यहाँ पे क्या है? area. इसमें अगर ये uniformly distributed mass है या density uniform है, then its center of mass is going to lie at this point. If you have a sphere, sphere will be 3D. ठीक है? Sphere कैसा होगा? 3D होगा. तो अगर आपके पास ये कैसा है? This is a ring. Ring में सिर्फ एक line है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? Line distribution. ठीक है, यहाँ पे. या फिर हम लोग बोल सकते हैं, इसके लिए अगर आप टर्म यूज करोगे डेंसिटी का, तो इसके लिए टर्म आएगा लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी मतलब एक लाइन के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो कितनी उस लाइन पे किस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम बोलेंगे लीनियर मास डेंसिटी. यहाँ पे क्या है? मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एरिया, तो हम लोग इसको बोलेंगे एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. वैसे ही अगर आपके पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर में इसमें सिर्फ क्या है? देखो एरिया है, एक एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर आपके पास स्फीयर है, स्फीयर मतलब बॉल टाइप का शेप है ना, जो बॉल होती है, तो कैसा है? 3D में है, तो वो एक वॉल्यूम है. तो यहाँ पे वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो अब अगर आपके पास डेंसिटी निकालनी है, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और ये वॉल्यूम मास डेंसिटी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मास m ओवर अ लेंथ l. मान लो इस रिंग की लेंथ है l. ठीक है, इस रिंग की लेंथ है l. या इसके बारे में अगर हम बोले तो मास है m, लेंथ है l. तो यहाँ पे डेंसिटी क्या आ जाएगी? m मास जो है वो l लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे पर यूनिट लेंथ है ना, मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर वाली डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से. तो क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ. तो m l लेंथ
लेंथ पे यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा m/l। सो पर यूनिट लेंथ पे, यूनिट लेंथ इज द स्मॉलेस्ट, हम लोग क्वांटिटी लेते हैं स्मॉलेस्ट उस चीज का यूनिट, तो यूनिट लेंथ पे कितना मास हो जाएगा m/l। सो इट्स मास डेंसिटी विल बी, लीनियर मास डेंसिटी विल बी m/l। पर यूनिट लेंथ हाउ मच मास वी हैव m/l। 1 मीटर अगर पर यूनिट लेंथ, एसआई में क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट्स में यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर पे m/l मास, फिर 1 मीटर पे m/l मास, तो l लेंथ पे कितना मास, टोटल लेंथ इनटू लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। वैसे अगर यहाँ पे l लेंथ ना दिया जाए, आपको दिया जाए कि इट्स रेडियस इज r, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, m मास जो है वो 2πr लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, m kg इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2πr मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर पे कितना होगा, इसको इस साइड लिख लो, 2πr लेंथ पे कितना मास है, 2πr मीटर पे कितना मास है, वी हैव m kg। तो पर यूनिट लेंथ 1 मीटर पे कितना आएगा, m/2πr kg पर मीटर। यूनिट्स क्या होंगे, लीनियर मास डेंसिटी के यूनिट्स क्या होंगे, kg पर मीटर। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, m मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, लेट्स से इट्स रेडियस इज r, ओवर एरिया इक्वल्स टू πr स्क्वायर। m मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एरिया ऑफ πr स्क्वायर, तो पर यूनिट एरिया πr स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इतने एरिया पे कितना मास है m kg। तो पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे हाउ मच, m/πr स्क्वायर kg पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर। दिस इज एरियल मास डेंसिटी। ठीक है ना, अब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो kg पर मीटर स्क्वायर, हर यूनिट एरिया पे कितना मास है, हर यूनिट एरिया पे कितना मास है, kg पर मीटर स्क्वायर। मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। बहुत सारे केसेस में सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा kg मीटर पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब कि हर एक यूनिट एरिया पे पर यूनिट एरिया वी हैव सिग्मा kg मास। एक मीटर स्क्वायर का अगर एरिया लोगे तो उस पे सिग्मा kg मास, और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लोगे उस पे सिग्मा kg मास। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r, क्लियर, तो अब यहाँ पे क्या है, इसका मास है m, तो इस केस में अब क्या है, वी हैव अ मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, तो m मास कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4/3 πr क्यूब पे ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो नाउ वी हैव 4/3 πr क्यूब मीटर क्यूब, है ना, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इतने क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पे वी हैव मास m kg। सो पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब, कितना होगा mg m डिवाइडेड बाय जो भी है 4/3 πr क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी इन दिस वॉल्यूम। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम, यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, जो कि हमने ये डेंसिटी तो हमने बहुत पढ़ा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला डेंसिटी हमने बहुत पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। सो हियर वी हैव, कहीं पे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी लाइन पे मास होगा, कहीं पे एरिया पे मास होगा और कहीं पे वॉल्यूम में मास होगा। क्लियर, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू हैव कैलकुलेट दी सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि रॉड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर किसी में इफ वी हैव वेरिएबल डेंसिटी, कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे रॉड मोटी होती जा रही है। क्लियर, तो कुछ केसेस में हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, सो उस केस को भी हम सॉल्व करेंगे। फिर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में आपको कई टाइप के डिफरेंट शेप्स देंगे और फिर यू विल हैव टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कभी स्क्वायर प्लेट दे दिया, कभी मान लो 2 रॉड को कंबाइन करके दे दिया, कभी आपको 3-4 रॉड को कई अलग अलग तरीकों से बेंड करके दे दिया। सो दोस काइंड ऑफ शेप्स, आपको उन सबके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कुछ तो हमने देख लिया कि इफ वी हैव अ रॉड, तो रॉड अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सीधा सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा। नाउ इफ वी हैव अ रॉड व्हिच हैज अ वेरिएबल डेंसिटी, ठीक है, तो धीरे धीरे मान लो मोटी होती जा रही है,
तो इधर मास कम है, इधर मास ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स द वेयर द डेंसिटी इज मोर। अगर आप रिंग की बात करो, इफ इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो सेंटर पे होगा, डिस्क का सेंटर पे, स्फीयर का सेंटर पे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो सिमेट्रिकल नहीं है ऑब्जेक्ट उसका हम सॉल्व करेंगे। तो पहले व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास फॉर रॉड। रॉड के लिए हम निकालते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, फर्स्ट लिख लेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड या फिर रॉड विथ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट है रॉड विथ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने ले लिया कि इसकी डेंसिटी है लैम्डा, हमें पता है वो m/l आएगा, m टोटल मास है, l लेंथ है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब डेंसिटी कैसी, कांस्टेंट। कहीं पे भी जाओ डेंसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे जिस डेंसिटी से मास रखा गया है सेम इज एवरीवेयर, पूरी थ्रू आउट द लेंथ डेंसिटी सेम है, ऐसा नहीं है कि इधर कम मास है और इधर ज्यादा मास है। तो अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा विल बी अ कांस्टेंट, लैम्डा विल बी अ कांस्टेंट। तो इसकी मान लो जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज लैम्डा kg पर मीटर। तो अब हमने क्या किया, वी वांट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर, कि यहाँ से कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, तो सेंटर ऑफ मास अगर आप r ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो तो हम क्या करते थे, m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू mn/rn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3। नाउ हियर व्हाट वी हैव अ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पार्ट्स में हमारे पास पार्टिकल्स नहीं है कि ये पार्टिकल इस लोकेशन पे है, ये पार्टिकल इस लोकेशन पे है, ऐसा हमें नहीं गिवन है, तो हमें खुद से करना पड़ेगा कि वेयर द मास इज लोकेटेड। सो नाउ आई कैन सी, अगर मैंने इसको ओरिजिन लिया, भाई जहां से आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है, आपको बोला कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट, उसी को ओरिजिन मान लो, तो जो भी लोकेशन आएगी, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस। सो अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो मुझे दिख रहा है कि नाउ इफ आई मूव फ्रॉम दिस ओरिजिन टू दिस साइड एट डिफरेंट x, एट एवरी स्मॉल x मास इज सिचुएटेड। यहाँ पे हर जगह मास रखा हुआ है, क्लियर है, और कैसा रखा है, जहां भी जाओ अगर आप 1 सेंटीमीटर आगे गए या 1 मीटर आगे गए तो उस जगह पे जो मास मिलेगा आपको, लेट्स से यू हैव मूव्ड बाय 1 सेंटीमीटर और फिर वहां से आपने 1 सेंटीमीटर तक देखा, तो उस 1 सेंटीमीटर में जितना मास मिलेगा, आफ्टर 1 मीटर ऑल्सो इफ यू मूव बाय 1 सेंटीमीटर, आफ्टर 1 मीटर भी जाकर के अगर आप उस 1 सेंटीमीटर में मास देखोगे आपको सेम मिलेगा, बिकॉज इट हैज अ लीनियर मास डेंसिटी, इट हैज अ कांस्टेंट लीनियर मास डेंसिटी। यहाँ पे कैसे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब मैंने क्या किया, इफ आई गो फ्रॉम हियर एंड आई सी कि यहाँ पे क्या है, मैंने छोटा सा मास देखा तो उसका कुछ छोटा सा मास होगा, एंड इस x डिस्टेंस पे मैंने जाकर के dx लिया, तो इस dx का कुछ छोटा सा dm मास होगा। कैन वी कैलकुलेट दैट, यस, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अभी देखेंगे। तो नाउ आई कैन से, अब यहाँ पे मैंने अगर इतना बड़ा मास लिया, इस पूरे को अगर मैंने लिया, कैन आई से कि दिस मास इज लाइंग एट x, कैन आई से कि दिस मास इज लाइंग एट x, नहीं, क्योंकि यहां से जब हम यहां पे पहुंचे तो ये x प्लस समथिंग एल्स हो चुका है, x प्लस समथिंग इतना लेंथ हो चुका है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा मास x पे लाई कर रहा है, बट इफ आई टेक अ वेरी स्मॉल dx, जो कि dx हमारा बहुत बहुत छोटा होता है, तो इस छोटे से dx के लिए आई कैन से कि दिस dx, फॉर दिस स्मॉल dx, इस छोटे से dx पे जो मास आएगा दैट इज स्मॉल मास, दैट इज dm, दिस dm इज लाइंग एट x, ठीक है। हम x डिस्टेंस पे गए और एकदम छोटा सा हमने dx का लेंथ लिया और वहां पे जो dm मास आ रहा है हमने उसको बोला कि हाँ ये dx लेंथ पे लाई कर रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। एक बड़े मास को हम नहीं बोल सकते, व्हाई, बिकॉज व्हेन यू आर हियर योर कोऑर्डिनेट इज x, व्हेन यू रीच टू दिस पॉइंट दिस कोऑर्डिनेट इज x प्लस समथिंग, और वो नेग्लिजिबल नहीं है, दिस लेंथ इज सिग्निफिकेंट लेंथ, तो आप इसको नहीं बोल सकते कि इतना पूरा का पूरा मास x पे लाई कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। बट अगर आप छोटा सा मास लो तो यू कैन से कि इट इज लाइंग एट x। तो बेसिकली हम जो छोटा छोटा जो हमने वर्क पावर एनर्जी में भी किया था इंटीग्रेशन का, बेसिकली आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगा। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें ये पता है कि दिस स्मॉल dm मास इज लाइंग एट डिस्टेंस x, तो अब हम क्या करेंगे, इस x को हम वेरी करेंगे, वी विल स्टार्ट x फ्रॉम हियर, और धीरे धीरे यहाँ पे हम x पे गए,
डीएम मास लिया, फिर आगे गए डीएम मास लिया, फिर आगे गए डीएम मास लिया, एंड व्हाट विल डू, इस डीएम मास का कोऑर्डिनेट है यहाँ वाला x, इस डीएम मास का कोऑर्डिनेट है यहाँ वाला x, इस डीएम मास का कोऑर्डिनेट है यहाँ वाला x. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको रिड्यूस करो. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि द मास इज लाइंग ओनली इन x, तो इसको हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे. x ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे आ गया आपका x1, यहाँ पे x2. नाउ इस m1 x1 प्लस m2 x2 की जगह क्या आएगा, इसको व्हाट आई कैन राइट, इस जगह पे जो डीएम मास है, इस जगह पे जो डीएम मास है, दैट इज लाइंग एट व्हाट डिस्टेंस, इट इज लाइंग एट x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. फिर जब यहाँ पे आए, यहाँ वाला डीएम इज लाइंग एट डिफरेंट x फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, तो नाउ व्हाट आई कैन राइट, इस छोटे से मास के लिए इसका हम लोग मोमेंट ऑफ मास जो हम बोलते थे, मैंने बताया था कि mx दिस क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ मास. तो जस्ट यहाँ पे वो वर्ड यूज करने के लिए आपको उस मोमेंट ऑफ मास से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं. तो इस छोटे से डीएम का मोमेंट ऑफ मास मैं क्या लिख सकती हूँ, डीएम इंटू एक्स, इट्स मास इंटू इट्स लोकेशन, इट्स मास इंटू इट्स लोकेशन. नाउ दिस वी आर गोइंग टू डू फॉर डिफरेंट डीएम from here to here, and what we'll do, we'll keep on changing this x. तो अब ये dm तो फिक्स हो गया. dm क्या है, dm is the mass of length dx of rod. rod में हमने एक dx लेंथ ली which is very small and उसके मास को हमने dm बोला. तो अब हमें पता है कि पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर पे कितना मास है, लैम्डा केजी है ना, लैम्डा केजी पर मीटर. तो 1 मीटर पे लैम्डा केजी मास है, तो dx मीटर पे कितना मास होगा, dx की लेंथ पे कितना मास होगा, लैम्डा केजी इंटू dx. तो कितना आ जाएगा ये, लैम्डा dx मास इज लाइंग इन दी dx लेंथ. dx लेंथ में कितना मास लाई कर रहा है, लैम्डा केजी है ना, 1 मीटर में लैम्डा, तो dx मीटर में इसे मल्टीप्लाई कर दो dx, इधर भी dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx लेंथ में कितना मास है, लैम्डा dx, और dx लेंथ का मास क्या है, dm. तो दिस dm इज नथिंग बट लैम्डा dx. तो अब जो इतना dm मास जो है, इट इज लाइंग एट डिस्टेंस x. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x को वेरी करते जाएंगे. x को हमने वेरी किया, दिस dm मास इज लाइंग एट दिस dx, दिस x, फिर दिस dm मास इज लाइंग एट दिस x. तो अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट दैट. तो मान लो यहाँ पे दूसरा मास लाई कर रहा है, इसको हमने x2 बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, दिस dm इंटू x2. बट जब आप इंटीग्रेशन करते हो, यू कैन राइट इट एज अ वेरिएबल, और फिर आप क्या करते हो, इसको यू वेरी इट फ्रॉम 0 टू l. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस छोटे से dm का जो मोमेंट आया, मोमेंट ऑफ मास, ये m1 x1, वो क्या आया, dm इंटू x. इस छोटे से का आया dm इंटू x. ऐसे ही हम सबके मोमेंट को ऐड करते जाएंगे, सबके मोमेंट को ऐड करते जाना है. तो ये क्या है, बेसिकली इसी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 टू l, तो उससे हमें क्या मिलेगा, पहले हमने रखा 0 इंटू dm, फिर 1 इंटू dm, 2 इंटू dm, 3 इंटू dm, 4 इंटू dm, 5 इंटू dm, 10 इंटू dm, l इंटू dm. ठीक है, ऐसी लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पे मास है. तो दिस dm इज कांस्टेंट, हम dx लेंथ तो उतनी ले रहे हैं ना, तो दिस dm इज कांस्टेंट और हम x को वेरी करते जा रहे हैं. एंड देन वी आर एडिंग ऑल द मोमेंट ऑफ स्मॉल dm, हर छोटे dm के मोमेंट को हम ऐड कर रहे हैं. एंड देन व्हाट विल डू, विल डिवाइड इट विद टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ रॉड. ठीक, टोटल मास ऑफ रॉड. तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली मास गिवन नहीं है, हमें डेंसिटी गिवन है एंड लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है एंड लेंथ गिवन है. तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया जाएगा आपका x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x इंटू dm, है ना, सारे मोमेंट का समेशन एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ रॉड. तो टोटल मास ऑफ रॉड कैसे निकालेंगे, तो dm का इंटीग्रेशन, dm इज द स्मॉल मास, और इसको dm अगर आप l लेंथ तक करते जाओगे, dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm l लेंथ तक करते जाओगे, तो यू विल गेट द टोटल मास ऑफ द रॉड. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू dm डिवाइडेड बाय फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो क्या जाएगा, dm फ्रॉम 0 टू l.
ठीक है। अब यहाँ पे यही आपका सेंटर ऑफ मास, अगर आप x ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तो बेसिकली आपको हर बार यही करना है कि एक dm मास है जो x पे है इंटीग्रेटेड, एक dm मास है जो कि x पे है, इसको इंटीग्रेट करो, m dx को इंटीग्रेट करो, दिस इज नथिंग बट ये समेशन ही है, ये जो इंटीग्रेशन देगा वो यही समेशन देगा। तो m dx यहां से आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ मास और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm विल गिव अस द टोटल मास। तो आई कैन राइट इन द इंटीग्रेशन फॉर्म, वो कौन सा फॉर्म था, व्हेन यू हैव डिस्क्रीट पार्टिकल्स, इन इंटीग्रेशन फॉर्म यू कैन राइट x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x dm या फिर dm x लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dm x फ्रॉम 0 टू x। अब वो वेरी करेगा, ये रॉड के लिए नहीं लिख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, या फिर अभी सिर्फ ये लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो ये summation of all the moment m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 and this is the summation of mass. So this will give total mass, this will give total moment. So total moment divided by total mass is the location of center of mass. वैसे ही y of center of mass will be dm y divided by integration of dm. Z of center of mass will be dm z का integration divided by integration of dm. So this will be the moment in y direction divided by total mass, moment in x direction divided by total mass, moment in z direction divided by total mass, and you will get the coordinates of center of mass x, y and z. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं for rod, फिर उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। So now here we have, जैसे अब मैंने क्या लिखा, यही लिख दिया मैंने x में, y में, z में। अब यहाँ पे क्या होगा, dm will vary, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट थी डेंसिटी तो डायरेक्टली आ गया लैम्डा dx। अगर डेंसिटी वेरी करेगी, मान लो लैम्डा आपकी वेरिएबल है, तो आपको वेरिएबल गिवन रहेगा कि हाउ इट इज वेरिंग विद x और इट इज वेरिंग विद y और इट इज वेरिंग विद z। So you will have to replace that lambda. Here we have a constant lambda. It may be a variable. So like that we'll have to do. So now x of center of mass, इसको हम replace करते हैं। तो x dm क्या है, dm is lambda dx divided by dm is lambda dx. Now x is, here we have integration of x, so x is varying from 0 to l, x is varying from 0 to l। इसको इंटीग्रेट करो, this is a constant, this is a constant, तो बाहर आएगा और फिर कैंसिल भी हो जाएगा। so x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx का इंटीग्रेशन is x square by 2, x square by 2, and here we have integration dx, integration dx will be x from 0 to l and from 0 to l। what we'll get, x of center of mass is equal to l square by 2 divided by l। so from here we are getting x of center of mass is equal to l by 2। so basically it will lie at the center, if this total is l, the center of mass is lying at l by 2, it means it is lying at the center of the rod, जो कि आना था, हमें पहले से पता था कि यही आएगा और यही हमें मिला है। तो अभी आपको ये चीज क्लियर है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, x में सारे मूवमेंट को ऐड कर रहे हैं, m dx x dm x dm x dm divided by total mass of the system, that is integration of dm। क्लियर है। तो अब इसी के आगे हम बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया है, अब हम लोग थोड़ा स्पीड से कर सकते हैं। so now we have a rod which has a density variable। so now we will solve a question where the density of rod is variable। so now rod of density lambda is equal to lambda naught x, lambda naught x, where lambda naught is a constant। कि आप मान लो कि जो आपकी रॉड की डेंसिटी है दैट इज 2x के साथ वेरी करे। इसका मतलब अगर आप किसी x डिस्टेंस पे जाओगे तो वहां पे आपको डेंसिटी मिलेगी 2x। मान लो हम x इज इक्वल टू 2 पे गए तो डेंसिटी विल बी 2x 2 into 2 4। फिर हम x इज इक्वल टू 10 पे गए तो वहां पे डेंसिटी होगी 20। समझ में आ रहा होगा, आना चाहिए। So what is happening now, यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे मास ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम जब x इज इक्वल टू 2 पे गए तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या रहे, इसको अगर मैंने मान लिया 2x तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 2 into 2, यहाँ पे 4 kg पर मीटर। तो यहाँ पे अगर हम छोटी सी लेंथ लेंगे या 1 मीटर लेंथ लेंगे यहाँ पे, तो उस 1 मीटर में 4 kg का मास होगा। और अब मान लो हम यहाँ पे आ गए x इज इक्वल टू 10 पे, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 into 10, यहाँ पे होगी 20 kg पर मीटर। So if I take 1 meter from here, if I take 1 meter from here, it will have 4 kg mass, 4 kg per meter. If I take 1 meter here, it will have 20 kg mass.
So basically the density is varying, density is increasing, the mass when we go in x the mass is increasing. ठीक है, यहाँ पे जब हम गए तो इस जगह पे 1 मीटर लेंथ का मास 20 kg है, इस जगह पे 1 मीटर लेंथ का मास 4 kg है. तो लाइक दिस वी कैन हैव प्रॉब्लम्स. जैसे मैंने यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स लिया, हो सकता है आपको कुछ और फंक्शन दे दे, आपको बोले कि द डेंसिटी इज वेरिंग विथ एक्स एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर. अब बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा. तो अब डेंसिटी और स्पीड से बढ़ रही है. अगर आप x इज इक्वल टू 2 पे गए तो 2, अगर यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2 पे लैम्डा विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, इट विल बी 8 kg पर मीटर, 8 kg पर मीटर. मतलब x इज इक्वल टू 2 पे 1 मीटर लेंथ हमको कितना मास देगी, 8 kg. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, होमवर्क में भी दे देंगे क्वेश्चंस. सो नाउ आपके पास है सेकेंड केस, व्हेन यू हैव रॉड विथ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स. सो नाउ वी हैव अ रॉड. So if I go at distance x and I take a small distance dx, so its mass will be dm. Can we calculate dm? हाँ. So यहाँ पे density क्या है? Density is 1 मीटर के लिए है lambda, which is nothing but lambda not x. So for dx length, we will have how much mass? dx into lambda, which is equal to lambda not x dx. This is lambda. Lambda is equal to lambda not x. So now dm mass is dx लेंथ में जो मास है दैट इज dm. तो इट इज इक्वल टू लैम्डा dx, इट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x dx. ठीक है, तो जब भी आपके पास लीनियर डेंसिटी वाला टर्म है, जब आपके पास लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लाइन में मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो dm मास क्या आएगा, dm विल बी इक्वल टू लैम्डा dx, क्योंकि जो लीनियर मास डेंसिटी होती है वो लैम्डा लेते हैं हम. तो यहाँ पे dm क्या जाएगा, लैम्डा dx. व्हेन यू हैव एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ एरिया, तो वहां पे आप dm कैसे निकालोगे, छोटा सा मास कैसे निकालोगे, सिग्मा dx, सिग्मा dA. ठीक है, करते हैं अभी हम लोग. तो यहाँ पे क्या किया हमने कि एक यूनिट लेंथ पे मास, यूनिट लेंथ पे मास कितना है, लैम्डा नॉट x, इट इज वेरिंग. यूनिट लेंथ पे मास कितना है, लैम्डा नॉट x kg पर मीटर, इट इज वेरिंग. अलग अलग x पे अलग अलग डेंसिटी है. तो हम अगर x डिस्टेंस पे गए, x डिस्टेंस पे क्या होगा, x डिस्टेंस पे कितनी है डेंसिटी, लैम्डा नॉट dx. और यहाँ हमने अगर एक dx लेंथ का छोटा सा मास लिया, मास एलिमेंट लिया छोटा सा, तो इसका मास कितना आएगा, dm विल बी इक्वल टू dx लेंथ का मास. dx लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इनटू dx, लैम्डा इनटू dx विल बी लैम्डा नॉट x dx, व्हिच इज इक्वल टू dm. सो dm इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x dx. अब सिंपली x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, या फिर आप लिख लो यहाँ पे x dm इंटू x डिवाइडेड बाई dm. यही करते हैं. अब हमारे पास है x, dm कितना है, लैम्डा नॉट x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाई dm. dm इज लैम्डा नॉट x dx फ्रॉम 0 टू l. अगेन लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा. x को बाहर नहीं लेना है, इट इज अ वेरिएबल. सो नाउ वी हैव फ्रॉम 0 टू l x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई x dx from 0 to l. तो x square का इंटीग्रेशन will be x cube by 3 and x का इंटीग्रेशन will be x square by 2 from 0 to l, from 0 to l. So now we will have l cube by 3 into l square by 2. So यहाँ से हमारे पास आ गया 2l by 3. 2l by 3 मतलब कुछ इस तरह लाई कर रहा है, l by 3, l by 3 and l by 3. ठीक है, this is l by 3, this is l by 3 and this is l by 3. तो 2l by 3, 2l by 3 पे मास लाई कर रहा है. पहले कहाँ लाई करता था, l by 2 पे. नाउ दिस इज 0.6l. l by 2 मतलब 0.5l. तो यहाँ पे एकदम बीच में लाई करता था, बट अब कहाँ लाई कर रहा है, 2l by 3 पे, इस जगह पे लाई कर रहा है. सो बिकॉज द डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, इसलिए इधर मास ज्यादा लाई कर रहा है. सो सेंटर ऑफ मास विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस एंड ऑफ द रॉड. क्लियर है? तो आपको बस ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी याद है. इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना नहीं पूछता. बाकी आगे हम जो केसेस करेंगे उसमें आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये केस आपका, तो उसमें हमें याद रखना पड़ेगा. तो नेक्स्ट केस लिखेंगे हाफ रिंग. नेक्स्ट केस इज हाफ रिंग.
with uniform mass distribution. Half ring with uniform mass distribution. Half ring. Again, when we are talking about ring, ring is a line, है ना, line पे mass distributed है, so it will have density again lambda. Uniform mass distribution है तो lambda kg per meter. यूनिट लेंथ पे कितना मास है, लैम्डा kg. अब यहाँ पे क्या करना है, दिस इज दी हाफ रिंग. नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने ओरिजिन लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग, इट्स रेडियस इज r. ठीक है. अब यहाँ पे ये देखो कि ये आपकी रिंग है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं ताकि ये दिखे रिंग टाइप, बट इट्स अ वेरी थिन रिंग. So now here we have mass distributed over this length. इस लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट, इस y एक्सिस के अबाउट, इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये, है ना. इधर जितना मास, इस पॉइंट पे इधर जितना मास उतना इधर मास, इधर जितना मास उतना इधर मास, जितना इधर मास उतना ही इधर मास. तो अगर हमारा y एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिक है, तो x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, हम ये देख रहे हैं कि इस x पे, यहाँ पे जितना, इस x पे जितना मास है उतना इस साइड है, फिर इस x पे जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है. तो क्या होगा, व्हेन यू विल डू m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3, क्या हो जाएगा, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हियर वी हैव मास m at certain x, similarly we have same mass at the same x. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, तो सारे के सारे x वाले जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे. तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा आना चाहिए, x ऑफ सेंटर ऑफ मास will be at 0. ठीक है. x ऑफ सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, जो आपका x ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो इस पे होगा, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 0. बट अब y में क्या है, y में इधर तो मास है, इधर कोई मास नहीं है, इधर मास है, इधर कोई मास नहीं है, इसका मतलब y ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर कहीं पे लाई करेगा. सो x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी 0, y ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू. तो क्या होगा, इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और करना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ सिमेट्री थोड़ी बहुत देखो तो इसी लाइन पे लाई करना चाहिए सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसके इधर भी उतना ही मास है, इसके इधर भी उतना ही मास है. अब y में सिमेट्रिसिटी नहीं है तो हम y में बोल नहीं सकते, बट इतना पता है कि इट विल लाई एट पॉजिटिव y. तो अब वो फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एलिमेंट कैसे लेंगे, जो स्मॉल dm एलिमेंट लेते थे. रॉड में व्हाट वी डिड, वी वेंट एट x डिस्टेंस एंड वहां पे हमने dx ले लिया, उसका dm फाइंड आउट कर लिया एंड देन वी वर एबल टू डू इट. यहाँ पे कैसे लेंगे, तो यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है एक किसी थीटा पे गए हम, यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक थीटा पे गए, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा डी थीटा लिया. अब डी थीटा को आई एम शोइंग अ वेरी बिग डी थीटा, बट ये बहुत ही छोटा है, वेरी 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 स्मॉल. डी थीटा, डी लगा दिया मतलब वेरी 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 स्मॉल. सो दिस डी थीटा इज वेरी स्मॉल. नाउ आई कैन फाइंड दिस आर्क लेंथ. क्यों, बिकॉज आई हैव द लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी है मेरे पास. तो मुझे क्या करना है, आई वांट टू टेक स्मॉल लेंथ ऑफ द रिंग, स्मॉल लेंथ ऑफ दिस हाफ रिंग, एंड फिर आई विल बी एबल टू फाइंड आउट इट्स स्मॉल मास. तो उस रॉड में तो सिंपली क्या किया हमने, किसी लेंथ x पे गए, वहां पे हमने dx लिया और हमने सीधा सा उस पे लगा दिया dm. अब यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ मतलब इस छोटी सी लेंथ को कैसे निकालेंगे हम. So if I know this angle, तो इस लेंथ को what I can write, this length is r d theta, है ना. किसी भी arc length को, if you want to find out this arc length, if this radius is r and this is theta, so this arc length is r theta. Now I want a very small length, so that I can find out the very small mass. तो इसलिए मैंने क्या किया, I have taken very small angle d theta, very small angle d theta. तो यहाँ पे ये जो d थीटा जो हम ले रहे हैं, दिस d थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, दिस d थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. तो ये लेंथ जो आएगी इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. इसको हमने बोल दिया अगर ds is the small arc length, then this small arc length will be r, radius of this half ring, into d theta. This will be the small arc length. Clear है ये चीज. Now for this small arc length, जिसको आप और छोटा मान सकते हो, एकदम इतना छोटा मान सकते हो कि ये यहाँ पे आ रहा होगा. This is the ds. This is the ds. So this ds जो है
वो क्या किस x पे रखा हुआ है, हम इस dm की बात कर रहे हैं। हमने लिया एक d थीटा, यहाँ पे हमने छोटा सा ये आर्क लेंथ निकाला विच इज ds, और उसको हमने बोल दिया कि इसका मास है dm। क्या हम dm फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, वी हैव लीनियर मास डेंसिटी कि पर यूनिट लेंथ द मास इज लैम्डा, पर यूनिट लेंथ मास इज लैम्डा, एंड फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट इट्स लेंथ इज हाउ मच? इट्स लेंथ इज ds। ठीक है, सो पर यूनिट लेंथ कितना मास है हमें पता है, इसकी लेंथ हमें पता है, तो हमें पता चल जाएगा, है ना। फॉर 1 मीटर और यूनिट लेंथ वी हैव लैम्डा kg मास, so for ds length we will have lambda ds kg mass which is equal to dm, small mass of this element. So now this dm mass is lying at this point. Can we find out its x coordinate and y coordinate? क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, सो इसका x कोऑर्डिनेट होगा ये और y कोऑर्डिनेट होगा ये, दिस विल बी इट्स x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये है r, दिस इज द रेडियस, तो ये आ जाएगा आपका r cos थीटा एंड दिस इज r sin थीटा। तो दिस लेंथ इज r cos थीटा, दिस लेंथ इज r sin थीटा। ठीक है, तो अब इस dm मास का जो कोऑर्डिनेट है r इज r sin थीटा, r cos थीटा, r sin थीटा। क्लियर है ये चीज? नाउ इसका मतलब ऐसे हम dm मास लेंगे एंड देन वी विल ऐड इट। तो फॉर कंप्लीट रिंग मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस कंप्लीट रिंग व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू टेक दिस थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 टू पाई। हम क्या करेंगे? 0 से पाई जब घूम के जाएंगे तो हमारी जो रिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो रिंग है वो कंप्लीटली हम कवर कर पाएंगे। सो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू टेक द एंगल फ्रॉम 0 टू पाई। 0 टू पाई लेंगे तो पूरी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। नाउ अब इस केस में क्या है? रॉड के केस में द मास वाज लाइंग ओनली एट x, तो y कोऑर्डिनेट सीधा 0 आ गया, x कोऑर्डिनेट l/2 आ गया। इन दिस केस इट हैज x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट। बाकी वी कैन डायरेक्टली से दैट इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0, लेकिन वो भी हम फाइंड आउट करके देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। So now first I want to find out the x of center of mass. So what I'll do? dm into x divided by dm, integration of dm into x divided by dm. Now यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो x कोऑर्डिनेट है हम इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं। इस एलिमेंट के लिए x कोऑर्डिनेट इज r cos थीटा, x कोऑर्डिनेट इज r cos थीटा and its mass is lambda ds which is lambda हमारे पास है lambda ही है और ds है r d थीटा। ठीक है, so dm is r lambda r d theta, lambda r d theta. So x is r cos theta and dm is lambda r d theta. अब यहाँ पे हमने पिछले केस में क्या किया था? We were taking x dx, our variable were x dx, ये वेरिएबल्स थे, बट अब हमारे वेरिएबल क्या है? थीटा एंड इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं d थीटा में। So यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज थीटा। So now theta will vary from where to where? Theta will vary from 0 to pi. Then only we will be able to complete the ring, na? So from 0 to pi and divided by dm. dm is again lambda r d theta. Theta is varying from 0 to pi. अब इसको हमने सॉल्व किया। So यहाँ पे हमारे पास lambda is constant, तो बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। r is constant, बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। So now here we have एक r बचा, उसको भी बाहर ले आओ। r cos theta d theta from 0 to pi divided by 0 to pi d theta. अब अगर आप cos का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा? cos का इंटीग्रेशन विल बी sin थीटा from 0 to pi और यहाँ पे क्या है आपका r डिवाइडेड बाई d थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा from 0 to pi. अब r sin pi is 0 minus sin 0 is 0 divided by theta pi minus 0, तो कितना आ गया? दिस इज 0. सो x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है? वैसे भी 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिस dm mass is lying at r cos theta, same dm mass here it is lying at minus r cos theta. तो जब हम लिखेंगे dm into r cos theta, dm into minus r cos theta दोनों कैंसिल हो जाएंगे। That's why what we are getting, इधर जितना मास है x में, हर जगह उतना ही मास है x में, दोनों साइड x के, इसलिए it is symmetric about x. So our center of mass
कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। अब हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग y कोऑर्डिनेट, व्हाट विल हैव टू डू, हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी y into dm, integration of y into dm divided by integration of y into dm divided by integration of dm। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस स्मॉल मास, y कोऑर्डिनेट इस dm मास का क्या है, इट इज r sin थीटा, r sin थीटा, dm is lambda r d theta, integration from where to where, from 0 to pi divided by lambda r d theta from 0 to pi, again these two will get cancelled, so now we have r sin theta from 0 to pi, I'm sorry, sin theta d theta from 0 to pi divided by d theta 0 to pi, so now r sin theta, इसका integration will be minus cos theta, so r minus cos theta from 0 to pi divided by its integration will be theta from 0 to pi, directly I'll write pi minus 0, so when I put limits in numerator, what I'll get, r here will get minus cos pi minus cos 0, है ना, minus cos pi minus cos 0 divided by, here we have pi, so it is minus 1 plus 1 and minus plus, here also plus 1, so what we are getting, 2r by pi, so y of center of mass is 2r by pi। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास है, सो इट इज y of center of mass is 2r by pi, so 2 into r divided by pi is 3.14, so definitely it is going to be less than 1 and we are going to get, this is going to be less than r, this is less than r, तो ये क्या है, this is its y coordinate is r, ये क्या है r 0, r है ना, ये this length is r, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, r, और ये क्या है, this is less than r, तो ये कुछ इधर लाई करेगा, it will lie at somewhere this point, so x coordinate of center of mass is 0 and y coordinate of center of mass is 2r by pi, it is 2r by pi, आप याद रख लेंगे। तो जो हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो आता है 2r by pi, कहां से, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी बॉटम, आपके पास अगर इस तरीके से हाफ रिंग है, देन सेंटर ऑफ मास विल लाई एट 2r by pi फ्रॉम बॉटम, इसको हमने ओरिजिन लिया था एंड हमारा y कोऑर्डिनेट आया कितना, इट इज 2r by pi, मतलब यहां से 2r by pi डिस्टेंस पे लाई करेगा। डू वी हैव अ मास हियर, डू वी एक्चुअली हैव मास हियर, नो, यहाँ पे कोई मास नहीं है, बट सेंटर ऑफ मास फॉर दिस हाफ रिंग लाइज एट दिस पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 2r by pi, अगर ये ओरिजिन है तो ये क्या है 0, 2r by pi। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हाफ डिस्क, हाफ डिस्क, सो हियर वी विल हैव मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एरिया, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एरिया में है, सो नाउ वी विल डील विद सिग्मा, लैम्डा का काम खत्म, अब बात आएगी सिग्मा की, क्योंकि सिग्मा से हमें क्या मिलेगा कि मास पर यूनिट एरिया कितना है। फोर्थ इज हाफ डिस्क and the density is sigma kg per meter square, per unit area we have sigma kg mass, हर यूनिट एरिया पे सिग्मा केजी मास, अभी हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, सो नाउ वी हैव अ डिस्क ऑफ रेडियस r and its density is sigma kg per meter square। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है, सो इसमें भी क्या दिख रहा है, इट इज अगेन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इधर जितना मास है ये पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर दिस एरिया वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास, तो यहाँ पे जितना मास है उतना यहाँ पे मास है, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, आई मीन सेम मतलब मैग्नीट्यूड में सेम लेंथ पे है, और नेगेटिव में है एक और एक पॉजिटिव में है, तो डेफिनेटली व्हेन वी विल ऐड ऑल ऑफ देम विल कैंसिल ईच अदर एंड x ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगेन हमें क्या मिलेगा, x of center of mass will be 0, x of center of mass will be 0। तो अब हम बात करते हैं y of center of mass की, तो यहाँ पे अब आपको फिर से एलिमेंट लेना है,
एलिमेंट कैसे लेंगे? हमने रिंग में क्या किया? रिंग में वी वांटेड अ लेंथ बिकॉज वी हैव लीनियर मास डेंसिटी। वी नो कि किसी भी लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम वो निकाल सकते हैं। नाउ हियर वी हैव सिग्मा व्हिच इज मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ एरिया। तो नाउ वी नीड अ एरिया, एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका एरिया हमें पता हो एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट इट्स मास। तो अब हमें छोटा सा एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हम यहाँ पे लेंगे हम इस ओरिजिन से स्मॉल r डिस्टेंस पे गए, रेडियस इज कैपिटल R, स्मॉल r डिस्टेंस पे गए एंड नाउ वी आर टेकिंग a half ring, we are taking a half ring of radius r। यहां पे हमने क्या किया, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे गए और हमने dr लेंथ लिया और वहां पे हमने एक रिंग बनाई। लेकिन उस रिंग की विड्थ क्या है? दैट रिंग हैज सम विड्थ व्हिच इज इक्वल टू dr व्हिच इज वेरी वेरी स्मॉल। उस रिंग की विड्थ है, इट हैज अ रेडियस स्मॉल r, इट्स विड्थ इज स्मॉल dr, है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक डिस्क है, ऐसे प्लेट मान लो जो आपकी कैसे है, सेमी सर्कुलर प्लेट है एंड देन व्हाट यू आर डूइंग, उस सेमी सर्कुलर प्लेट पे आप उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे गए व्हिच इज लेस देन इट्स रेडियस, r डिस्टेंस पे गए और वहां पे आपने एक ऐसे लाइन खींची और फिर एक दूसरी लाइन खींची एट डिस्टेंस dr। सो नाउ यू हैव अ स्ट्रिप, यू कैन से एक ऐसी पट्टी है which is semicircular in shape है ना, semicircular in shape और उसकी width कितनी है, small dr, उसकी जो width है that is very small and it is dr। Now can we find out the area of that strip? हम उस strip का area find out कर सकते हैं क्या? Yes, तो वो क्या है, एक semicircular ring है जिसकी width है very small which is dr। तो आपको एक ऐसी पट्टी मिलेगी, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से। तो now क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि I can find out area for this ring। और अभी मैंने क्या किया था, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था। I know कि if I have a ring of radius r, half ring of radius r, its center of mass will lie at 2r by pi from this center। तो इस अगर मैंने अभी small r लिया तो at this point 2r by pi पे इसका center of mass lie करेगा। तो what I am going to do, मुझे इस small ring का एरिया पता है। So what I am going to do, I will make, जो ये डिस्क है उसको मैं बनाऊंगी एक छोटी छोटी रिंग के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रिंग, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे रिंग जैसे कि मैंने लिए, बीच बीच में हमने यहाँ पे आई मेक दोज रिंग्स। तो हमने क्या किया, आई एम मेकिंग अ डिस्क विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल रिंग्स, ठीक है। सो नाउ वी हैव, इस छोटे से का मास मुझे पता है dm एंड इसका सेंटर ऑफ मास पता है, इसका मास मुझे पता है, इसका सेंटर ऑफ मास पता है, इसका मास मुझे पता है, इसका सेंटर ऑफ मास पता है मुझे। तो ऐसे ही व्हाट आई विल डू, नाउ आई नो कि ये जो रिंग है, इस रिंग को आई कैन रिप्लेस, दिस रिंग हैज मास dm, its center of mass is lying here। तो आई हैव डिफरेंट रिंग्स जिनके सेंटर ऑफ मास इस y कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हैं। तो अब उस छोटे छोटे रिंग को भूल जाओ और क्या सोचो कि एक dm मास का रिंग है जो यहाँ लाई कर रहा है, एक dm मास का पार्टिकल है, रिंग बीइंग पार्टिकल। इस मास को मैंने क्या किया, इसका मास मैंने निकाल लिया और इसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है। तो अब मैंने क्या किया, इस रिंग को हम भूल गए और हमने कहा कि इस dm मास का पार्टिकल इस पे लाई कर रहा है, इस dm मास का पार्टिकल यहाँ लाई कर रहा है, इस dm मास का पार्टिकल यहाँ लाई कर रहा है, इस dm मास का पार्टिकल यहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उनका वहीं लाई करेगा। तो नाउ आई एम फॉरगेटिंग अबाउट द रिंग एंड आई एम जस्ट डीलिंग विद their center of mass। तो now I can say कि we have different particles, बहुत छोटे particles, we are lying at different y and we can use y dm और फिर सबका इंटीग्रेशन करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे पिछले केस में हमने आर्क लिया था एज अ एलिमेंट एंड वी वर एबल टू फाइंड आउट इट्स मास, क्योंकि हमारे पास लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी थी, यहाँ पे एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस रिंग का एरिया निकालेंगे। क्लियर है ये चीज? इस रिंग के लिए मैंने इतना थिन लिया है इस रिंग को कि नाउ आई कैन से कि जो हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था 2r by pi, दैट इज वैलिड फॉर दिस आल्सो। सो नाउ आई कैन से फॉर दिस रिंग, इस रिंग के लिए क्या है, वो वैलिड है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक रिंग है ऑफ रेडियस स्मॉल r और उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है यहाँ 2r by pi पे। तो अब हम इसका मास निकालते हैं dm। सो dm मास निकालने के लिए क्या चाहिए हमें,
उस रिंग का एरिया। सो हम यहाँ पे r डिस्टेंस पे गए एंड वी हैव टेकन दिस रिंग ऑफ विड्थ dr। इसकी विड्थ क्या है dr। तो कैन यू फाइंड आउट द एरिया? हाँ, तो एरिया कैसे निकालेंगे? अब इस स्ट्रिप का एरिया कैसे आएगा? तो ये लेंथ कितनी है? दिस टोटल लेंथ इज 2 पाई r, एरिया ऑफ द रिंग विच इज वेरी स्मॉल, और हमने इसको लिखा dA। ठीक है, वेरी स्मॉल एरिया dA इज इट्स लेंथ इनटू विड्थ। इसकी लेंथ क्या है? लेंथ इज पाई r। पूरा कितना होता है? 2 पाई r, सो दिस विल बी पाई r इनटू विड्थ इज dr। ठीक है, विड्थ इज dr। तो इसका एरिया कितना हो गया? दिस इज लेंथ इनटू विड्थ। ये एरिया कितना आ जाएगा? पाई r dr। नाउ वी हैव 1 मीटर स्क्वायर पे कितना मास है? सिग्मा kg। तो ये भी क्या है? ये भी एक एरिया है। तो dA पे कितना होगा? dA पे होगा सिग्मा dA kg। क्लियर? और हमारे पास dA क्या है? dA इज पाई r dr। सो सिग्मा, ये मास कितना है? दिस मास इज dm। सो dm मास कितना आ गया? सिग्मा पाई r dr। सो दिस स्मॉल रिंग, स्मॉल हाफ रिंग हैज अ मास इक्वल्स टू सिग्मा पाई r dr, वेयर सिग्मा इज अ कांस्टेंट। अभी हम क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस स्मॉल मास इज सिग्मा पाई r dr। नाउ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, इफ यू हैव अ रिंग ऑफ रेडियस r, half ring of radius r, its center of mass will lie at 2r by pi from this point. It will lie at 2r by pi from this point. इसका मतलब इस पूरे मास का जो लोकेशन है in y डायरेक्शन या फिर in y कोऑर्डिनेट, it is 2r by pi and इसका x क्या है? इसका x तो 0 है। तो जो सारे के सारे रिंग है यहाँ पे, सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? इन जगहों पे लाई कर रहा है। इट इज नॉट लाइंग एनीवेयर इन द x। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास वैसे भी 0 आना है। तो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट y ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो फॉर दिस स्मॉल dm, y into dm डिवाइडेड बाय dm। ठीक है, तो इसका y क्या है? इसका y है 2r by pi। इट्स y कोऑर्डिनेट, इस dm मास का y कोऑर्डिनेट इज 2r by pi। ठीक है, इनटू dm क्या है? सिग्मा पाई r dr। इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे? तो नाउ वी स्टार्टेड टेकिंग रिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट एंड वी आर टेकिंग इट अप टू कैपिटल R। तभी तो हमारा पूरा डिस्क बनेगा ना। तो हमने क्या किया? फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। वैसे ही सिग्मा पाई r dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बिकॉज ये कांस्टेंट है, पाई से पाई कैंसिल, दिस स्मॉल r कैन नॉट बी कैंसिल्ड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? इस r को हम वेरी करते जा रहे हैं ना, एंड दिस r इज ओनली वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो क्या क्या बाहर आ गया? 2 बाई पाई बाहर आ गया, ऊपर है r स्क्वायर dr फ्रॉम 0 टू r एंड नीचे है r dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। सो 2 बाई पाई इंटू r क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर बाई 2। अब यहां से कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा? 2 कैपिटल R बाई 3 पाई एंड और एक यहां से 2 जाएगा तो ये बन जाएगा 4। सो नाउ वी हैव y of center of mass is equal to 4r by 3 pi, 4r by 3 pi। so this is 4 and ये क्या है? ये बन जाएगा 3.14, so 4 by 9 point something, so definitely it is less than r, है ना। तो ये क्या, ये कहां पे होगा? कुछ इस जगह पे लाई करेगा। 4r by 3 pi is the y coordinate of center of mass। अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे? x of center of mass is equal to x dm divided by integration of dm। now when I am writing x dm, so for this dm x coordinate is 0, for this dm x coordinate is 0, for this dm x coordinate is 0। so whatever element I am taking the half rings, so for all those half rings their x coordinate is lying at 0। center of mass of those half ring have 0 x coordinate, so सबके लिए 0 आ जाएगा, this will become 0। so x coordinate of center of mass is 0। so in this case, और होना भी चाहिए क्योंकि it is symmetric about y, जितना इस x में मास है उतना ही इधर वाले x में मास है। तो यहाँ पे x coordinate of center of mass will be 0, y coordinate of center of mass will be 4r by 3 pi। तो रिंग के लिए आया था 2r by pi, रिंग के लिए क्या था? 2r by pi and for the disk, आपका सेमी सर्कुलर डिस्क, we have center of mass lying at
4r/3 नेक्स्ट लिखेंगे हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब आपके पास जो कटोरियां जो होती है ना घर में, उसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। अब जब आप उस कटोरी की बात कर रहे हो तो वो कटोरी कैसी है? इट इज अ वॉल्यूम, और इसमें वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? सो वी हैव अ बाउल लाइक दिस। सो इसमें क्या है? इट्स अ एरिया। ये क्या है? एरिया। एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे? तो हमने फिर से इस तरीके से बनाया। नाउ द स्ट्रक्चर इज इन 3D। स्ट्रक्चर तो कैसा है? 3D में है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो 3D में लाई कर रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख लेना हेमिस्फेरिकल बाउल। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट आई कैन डू, हम लोग इसको ऐसे डिस्क से बना सकते हैं कि यहाँ पे एक, नॉट डिस्क, रिंग से बना सकते हैं, ठीक है। कि मैंने क्या किया, हम लोग ऐसे पहले बड़ी रेडियस की रिंग लिए, बड़ी रेडियस की रिंग लिए, फिर उसके ऊपर रिंग ऐसे छोटी छोटी रेडियस करते गए और रिंग रखते गए। क्या बनेगा? एक कटोरी बन जाएगी। सोच के देखो, हमने क्या किया, पहले बड़ी रिंग लिया, फिर रिंग को थोड़ी सी छोटी किए, फिर थोड़ी छोटी किए, फिर छोटी छोटी छोटी, ऐसे रिंग के ऊपर रिंग रखते गए रखते गए रखते गए। तो क्या बनेगा? इट विल बिकम अ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हियर योर एलिमेंट इज अ रिंग। एक कंप्लीट रिंग आपका यहां पे हेमिस्फेयर बनाएगा। सो नाउ अब हमने क्या किया, रिंग का सेंटर ऑफ मास तो हमें पता है कि रिंग के सेंटर पे लाई करता है, तो लेकिन हमें रिंग का मास तो निकालना पड़ेगा ना। जो हम रिंग, एलिमेंटल रिंग जो ले रहे हैं, उसका मास तो हमें निकालना पड़ेगा। तो फॉर दैट व्हाट वी नीड एरिया ऑफ दैट रिंग। तो यहाँ पे हमने फिर से लिया सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एरिया, एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हम गए फिर से थीटा पे और हमने लिया डी थीटा। तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू मेक, एक डी थीटा पे जाके हमने यहाँ पे फिर से ये आर्क बनाया। तो इस आर्क की विड्थ जो आएगी, ये जो आर्क की जो लेंथ आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो बेस का सेंटर था वहां से हम आर पे गए और हमने डी थीटा लिया। तो वहां पे क्या बनेगी, आर पे एक रिंग बनती, सॉरी थीटा पे एक रिंग बनती है ना, कुछ रेडियस की रिंग बनती। और फिर हमने क्या किया, डी थीटा लिया, तो उस पे और एक रिंग बनेगी। तो यहाँ पे एक रिंग बनेगी और यहाँ पे एक रिंग बनेगी। तो एक रिंग छोटी, एक रिंग बड़ी। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं, ऐसी कंप्लीट रिंग। व्हेन वी वर फॉर्मिंग द डिस्क, उसमें क्या था, हाफ रिंग। बहुत सारी हाफ रिंग के ऊपर हाफ रिंग रखते गए, इंक्रीजिंग रेडियस की, एंड देन वी वर एबल टू फॉर्म द डिस्क। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक छोटी रिंग, फिर बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एंड वी आर एबल टू फॉर्म द हेमिस्फेरिकल बाउल। तो अब इसकी जो विड्थ आएगी, वो विड्थ क्या आएगी, दिस इज आर डी थीटा। इसको अगर हम और अच्छे से ड्रॉ करें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हम आर रेडियस है इसकी, पहले थीटा पे गए और फिर हमने डी थीटा लिया। तो ये डी थीटा विड्थ की अपने पास क्या है, डी थीटा विड्थ की एक रिंग है, एक रिंग, और उसके ऊपर थोड़ी सी हाइट पे गए डी थीटा पे अनदर रिंग, और उस पूरी को हमने एक रिंग मान लिया। ठीक है, उस पूरे को हमने एक रिंग मान लिया। नाउ इट हैज सम विड्थ, और विड्थ कितनी है, that width is equal to r d theta. So now you know the length of the ring, you know the width of the ring, you can find out the area. तो वो small area of that ring will be dA is equal to, its length will be, total length is 2 pi, its radius r. अब इसकी रेडियस कितनी होगी, हमें पता है कि when we are moving from top to bottom या bottom to top, the radius is increasing. When we are moving from top to bottom, radius is increasing, bottom to top, radius is decreasing. तो अब यहाँ पे इसकी जो रेडियस है कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस रिंग की रेडियस अगर ये थीटा पे है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिंग की विच इज एट थीटा, तो ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज r cos थीटा, दिस लेंथ इज r cos थीटा, है ना, ये लेंथ कितनी है r sin थीटा।
तो दिस इज द रेडियस ऑफ दैट रिंग, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट रिंग, वो कितनी है, इट इज इक्वल टू r cos थीटा, रेडियस ऑफ दैट रिंग स्मॉल r इज इक्वल टू r cos थीटा। तो एरिया कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ दैट रिंग इज दिस इज द लेंथ इंटू dr, है ना, और वो dr क्या है, बेसिकली विड्थ, और वो विड्थ कितनी है, इट इज कैपिटल R इंटू डी थीटा, कितना है ये, कैपिटल R इंटू डी थीटा। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई स्मॉल r इज r cos थीटा इंटू r डी थीटा। तो dm कितना आ जाएगा, dm विल बी सिग्मा dA मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, मास पर यूनिट एरिया इंटू स्मॉल एरिया, दिस इज द dm। सो सिग्मा और dA कितना है, 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। अब इसका अगर हम इस रिंग की बात कर रहे हैं, इस छोटी सी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, एट दिस पॉइंट लाई करेगा, है ना, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास, दिस इज द रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास लाई कहां करेगा, रिंग के सेंटर पे, और रिंग का सेंटर फ्रॉम बॉटम कितने दूरी पे है, इस रिंग का सेंटर फ्रॉम बॉटम कितनी दूरी पे है, इट इज एट r sin थीटा, कहां पे है ये, r sin थीटा पे, दिस इज r sin थीटा, ठीक है। तो और इसका x कोऑर्डिनेट कहां लाई करेगा, दिस रिंग इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x में इधर जितना मास है उतना इधर मास है, x कोऑर्डिनेट तो फिर से 0 आना है, इस पूरे का x कोऑर्डिनेट 0 आना है, बिकॉज़ दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x में इधर जितना है उतना इधर है। तो नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग अपॉन y ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस रिंग का y कहां लाई कर रहा है, r sin थीटा पे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। तो y फॉर दिस dm इज r sin थीटा एंड दिस dm इज सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा, क्लियर, 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा फ्रॉम, अब हमें थीटा कहां से कहां वेरी करना है, सोच के देखो, इस केस में हम थीटा 0 से पाई वेरी करें क्या, थीटा 0 से पाई वेरी करना पड़ेगा क्या हमें, सोचेंगे एक बार। तो यहां पे अगर इफ आई एम टेकिंग दिस थीटा फ्रॉम 0 टू 90, 0 टू 90 लिया, तो इस थीटा पे ये रिंग आई, इस थीटा पे ये रिंग आई, और इस थीटा पे ये रिंग आई, जब थीटा यहां पे पहुंच गया ये रिंग आ गई। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस कंप्लीट मास, क्योंकि जब मैंने ये थीटा लिया, तो ये मास भी कवर हो गया, इस रिंग का पूरा मास इस हाइट पे या इस थीटा पे जो पूरा मास था सारा का सारा कवर हो गया। फिर हम थीटा बढ़ाते गए, थीटा जब 90 पहुंचे तो ये भी कवर हो गया। सो बेसिकली व्हेन वी आर बेयरिंग थीटा फ्रॉम 0 टू 90, उसी में पूरा का पूरा मास कवर हो गया है। सो आई डोंट हैव टू टेक दिस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, क्योंकि 0 टू 90 में ही आई एम एबल टू कवर द कंप्लीट बाउल। तो यह आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और नीचे dm कितना है, सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर 2 पाई सिग्मा सिग्मा, ओके। सो नाउ वी हैव r sin थीटा cos थीटा d थीटा 0 टू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 0 टू पाई बाई 2 cos थीटा d थीटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 और यहाँ 2, तो यह जाएगा r बाई 2, this will become sin 2 theta. So now we have integration sin 2 theta d theta divided by integration cos theta d theta from 0 to pi by 2, from 0 to pi by 2. So now we have r by 2 into sin 2 theta का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2 theta and divided by 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 minus cos 2 theta from 0 to pi by 2 and divided by cos theta का इंटीग्रेशन sin theta from 0 to pi by 2. So cos 2 theta का क्या आ जाएगा, r by 4 into here we have minus cos 2 theta. Minus cos 2 theta will be minus cos pi, so it will be plus 1 minus cos 0, so it will be again plus 1 divided by sin pi minus sin 0, it will be 1. So what will get, r by 2, y of center of mass is r by 2, है ना, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4, so y of center of mass is r by 2. तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, y is equal to r by 2 पे, और इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट
0. ठीक है, तो 0, r/2 will be the center of mass for this object.